Okay, friends, so once again, welcome back and a very good evening to everybody. I hope you all are safe, your family member, your relative, your parents, your friends, all are safe, and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, we are discussing a very interesting chapter, fluid mechanics. We are discussing, and so far we have discussed the fluid statics. Friends, as you know, fluid mechanics is divided into two part, fluid statics and fluid dynamics. So there are some numerical still left. In the case of fluid statics, we'll complete that numerical and then we switch to the fluid dynamics. But fluid statics में हमने क्या concept सीखा है? So basically, we had learned three particular concepts in the fluid statics. Number one, we discussed about the Pascal's law. And Pascal's law in the distribution manner, if you apply the pressure at any point in the incompressible fluid, then its effect will be transferred to every points equally. That was the Pascal's law, number one. Number two, we had also discussed the hydrostatic pressure. We had learned at the depth edge from the free surface of a liquid. फ्री सरफेस मतलब कौन सा सरफेस जो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होता है ना, उसको फ्री सरफेस बोलते हैं. So at the h depth from the free surface of a liquid, the pressure, hydrostatic pressure, can be given by P atmospheric plus rho gh. So that was the second thing we had learned in the fluid statics. And third thing, we had learned about the buoyant force and Archimedes principle, as well as we had also learned about the law of flotation. So ये buoyancy के साथ connected चीज हमने discuss किया था. So these are the three basic concepts we had learned in the fluid statics. और उसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस कर रहे थे. हमने इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 5 डिस्कस किए थे और 6 मैंने आपको होमवर्क में दिया था. Am I right, friends? Yes or no? Yes, sir. So you had, Yes, sir. okay, have you tried for the 6th question? Yes. Yes, sir. 5 तक तो मैंने कराया था Yes, आपको. तो 6 मैंने एक होमवर्क में दिया था. आपने ट्राई किया हो तो अच्छा, ठीक है. नहीं किया हो तो मैं अभी आपको एक करा रहा हूँ. So are you able to see the question in your mobile screen? क्वेश्चन नंबर 6 yes, sir. दिख रहा है, लैपटॉप की स्क्रीन पे दिख रहा है. Yes or no? Yes, sir. Okay. Yes, sir. क्या लिखा है देखो. In a car, lift compressed air exerts a force F1. In the car lift compressor, compressed air exert a force F1 on the smaller piston having the radius 5 centimeter. तो यहाँ पे कितना फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो वो भी बताया हुआ है. स्मॉलर क्रॉस सेक्शन पे आपने F फोर्स अप्लाई किया हुआ है. दिस प्रेशर इज ट्रांसमिटेड टू अ सेकंड पिस्टन ऑफ अ रेडियस 15 सेंटीमीटर. ये लिखने की जरूरत नहीं है. As per the Pascal's law, it will definitely get transferred to the second piston. It is not required to write. If the mass of the car to be lifted is 1350 kg, then what is the F1? So friends, as you know, as per a Pascal's law, I can say a pressure F1. had applied is equal to the pressure which is transferred. Am I right, friends? Yes, sir. So F1 upon A1 is equals to F2 upon A2. Now I want to lift this car. मुझे ये कार को लिफ्ट कराना है. तो how much force which we required to produce? F2 का वैल्यू कितना होना चाहिए भैया? कार के वेट जितना. एग्जैक्टली कार के वेट जितना.
because if you want to lift any object, then you have to apply the force exactly equals to its weight. चलो यहाँ तक समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. देखो यहाँ पे दोनों का रेडियस हमको दिया हुआ है. स्मॉलर पिस्टन का जो रेडियस है ना वो 5 है, लार्जर का 15 है, तो 5/15 1/3. 3 का स्क्वायर हो जाएगा. सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत इसलिए नहीं है बिकॉज रेशियो फॉर्म में है, तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा. मास जो है ना कार का वो है 1350 एंड जी का वैल्यू 9.8. The force which is produced, which you need to provide 50 into 9.8 divided by exactly 9. तो इसका सिंप्लीफाई दो, you will get the answer. चलो, so that is the answer of the first question. Second question is what is the pressure necessary to accomplish this task? तो अब फोर्स तो मिल गया, आपको प्रेशर फाइंड करना है, तो आप चाहे P1 फाइंड कर लो या चाहे P2 फाइंड कर लो, इट विल बी द सेम थिंग. Either you can take F1 by A1 or you can find the F2 by A2. You get the same answer. Okay, F1 आपके पास अभी है A1 के बदले pi r square, pi r1 square. Can you calculate this thing? Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. So you can solve this question. Okay, चलो अब 7th क्वेश्चंस एंड ऑनवर्ड्स जो क्वेश्चन है ना वो फ्लूइड डायनेमिक्स के बेस्ड पे है, तो अभी इलस्ट्रेशंस हम नहीं कर पाएंगे. कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं. कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, तो वो मैं थोड़ी बाद में, एक आध दो लेक्चर के बाद में उसको होमवर्क में देने वाला हूँ एक बार रीड करने के लिए. तो 1 to 4 क्वेश्चन अभी नहीं, बट एक आध दो लेक्चर के बाद वो होमवर्क में आपको देने वाला हूँ. क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ. Are you able to see the question number 5 in your mobile screen or your laptop? Yes. Yes. Yes, sir. देखो क्या लिखा है. A 50 kg girl wearing a high heel shoe balances on a single heel. अच्छा, तो मतलब ये जो गर्ल है उसका जितना भी वेट है वो किसके ऊपर आएगा? Single hill. Single hill. हाँ, सिंगल हिल पे आएगा. और उसका डायामीटर आपको दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर. Centimeter. तो डायामीटर के ऊपर से आपको रेडियस मिल जाएगा. रेडियस के ऊपर से आपको पाई आर स्क्वायर करोगे आप, पाई आर स्क्वायर, तो आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया मिल जाएगा. सो व्हाट इज द प्रेशर? तो प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया. F upon. So will be equals to the weight of the girl, that is माँ जी, and upon area is equals to pi r square. यहाँ पे 2 into pi r square करने की जरूरत नहीं है. Why? Because girl is standing on the Single hill. मतलब. single hill. तो क्या ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करवाना चाहिए या आपको होमवर्क में देना चाहिए? Homework में देना. होमवर्क में देना चाहिए. Okay, so I'm going to skip this question. Okay, 1 to 4 मैं होमवर्क में ही देने वाला हूँ, बट बाद में, अभी नहीं. 5th क्वेश्चन इज ओवर. 6 पे आ जाओ. देखो टॉरिसेली का एक्सपेरिमेंट हमने लास्ट लेक्चर में किया था. Yes. टॉरिसेलिस बैरोमीटर यूज्ड. टॉरिसेलिस बैरोमीटर यूज मर्क्यूरी. पास्कल डुप्लीकेटेड इट यूजिंग फ्रेंच वाइन. देखो पास्कल थोड़ा मतलब इस टाइप का आदमी था, तो उसने ऐसा सोचा कि चलो मर्क्यूरी यूज नहीं करना है, वाइन का यूज करना है. तो डिटरमाइन द हाइट ऑफ द वाइन कॉलम फॉर अ नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो भैया वाइन का यूज करते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा. क्यों प्रॉब्लम हो जाएगा? बिकॉज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का प्रोड्यूस करने के लिए मर्क्यूरी का कॉलम कितना हाइट का था, याद है आपको? 76 सेंटीमीटर. फॉर मर्क्यूरी, राइट? Yes, sir. Yes, sir. मर्क्यूरी के लिए तो जस्ट 76 ही था.
बट अगर वाइन का यूज करते हैं और वाइन का हमको डेंसिटी दिया हुआ है, तो अगर उसके लिए वाइन का यूज करते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। क्या प्रॉब्लम आ जाएगा देख लेते हैं, चलो। वो बढ़ जाएगा सर, क्योंकि वो सर हाँ। मतलब वो डेंसिटी कम होगी उसकी, तो फिर परफेक्ट। तो मुझे प्रोड्यूस तो करना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये तो करना ही है। वाइन का जो डेंसिटी है ना वो 984 दिया हुआ है, जी का वैल्यू 9.8 लेते हैं, तो एच का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अगर वाइन का यूज करना है इसी एक्सपेरिमेंट के लिए, तो आप ये थोड़ा सिंप्लीफाई करो, क्या मिलता है देखो। 1.013 इंटू 1 लाख divided by 984 divided by 9.8. So what you will get? Just calculate by calculator. Use the calculator. Get me the answer. तो क्या आंसर आ रहा है? 10.50. 10.50 मीटर्स भैया, मीटर। 1 मीटर माने 100 सेंटीमीटर। तो ये 10 मीटर का आपको ट्यूब लेना पड़ेगा। 10 मीटर का आपको ये वेसल लेना पड़ेगा। इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। इज अंडरस्टूड फ्रेंड? Yes, sir. यस सर। यस सर। ओके, दैट इज अवर आंसर। पास्कल ने ये लेके नहीं नहीं, वो तो एक जस्ट हाइपोथेटिकल थिंग है कि भाई अगर ऐसा करते तो क्या होता। तो ऐसा पास्कल ने सोचा था। ओके। यस सर। चलो, क्वेश्चन नंबर 7। A vertical offshore structure is built to withstand a maximum stress of 10 raised to 9 Pascal. Is the structure suitable for the putting up on top of an oil well in the oceans? Take the depth of the ocean to be roughly 3 kilometers and ignore ocean currents. तो देखो यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि ऑफशोर स्ट्रक्चर जो है ना उसका स्ट्रेस 10⁻⁹ पास्कल है। वो इतना ट्रेस बेयर कर सकता है। बट अगर उससे ज़्यादा ट्रेस प्रोड्यूस हुआ, उससे ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हुआ, तो क्या होगा? क्या तो उसका क्या होगा स्ट्रक्चर का? तो बोले कोलैप्स हो जाएगा। अगर ऑब्वियसली उसके बैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा अगर स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है तो ऑब्वियसली वो कोलैप्स हो कोलैप्स। Collapse हो जाएगा जाए. सर। वही ऑफशोर तो चेक करना है, वही तो चेक करना है कि क्या होगा। सर, ऑफशोर मतलब एक टाइप का स्ट्रक्चर है जिसको हम ओशंस के अंदर डालना है, दैट इज कॉल्ड ऑफशोर स्ट्रक्चर। ओके, वर्टिकल ऑफशोर स्ट्रक्चर, जिसको ओशंस के अंदर डालने से हमको वहां पे कुछ एक्सपेरिमेंट करना है या फिर कुछ वहां पे इवेंट है, जो भी है। मतलब एक स्ट्रक्चर है जिसको हमको ये ओशंस के अंदर 3 किलोमीटर डेप्थ पे डालना है। ओके। यस सर। तो हम एक काम करते हैं, हमें ना 3 किलोमीटर डेप्थ पे प्रेशर फाइंड करते हैं, रो जी एच। तो वो प्रेशर मुझे मिला 2.95 10⁻⁷ मिला। और बैरिंग कैपेसिटी कितनी है? 10⁻⁹. तो फिर क्या होगा? कोलैप्स नहीं होगा। कोलैप्स नहीं होगा। तो हैंस द स्ट्रक्चर विल बी suitable फॉर पुटिंग अपॉन टॉप ऑफ द oil well provided the pressure exerted by sea water is less than the maximum stress. Is that clear? यस सर। Okay. ओके, क्वेश्चन नंबर 8 आपके मोबाइल के स्क्रीन पे दिख रहा है आपको? यस Yes, सर। sir. देखो क्या लिखा है। यस सर। ओके,
ओके, क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है? A hydraulic automobile lift is designed to lift cars with a maximum mass of 3000 kg. देखो, जिस कार को आपको लिफ्ट करना है उसका मास दिया हुआ है, मतलब इनडायरेक्टली हमको कितना फोर्स प्रोड्यूस करना है, फोर्स हमको कितना प्रोड्यूस करना है वो दिया हुआ है. The area of a cross section of the piston carrying this load is 425 centimeters square. What maximum pressure would the smaller piston have to bear? Friends, याद करो, चाहे लार्जर पिस्टन हो या चाहे स्मॉलर पिस्टन हो, प्रेशर ऑन द स्मॉलर पिस्टन विल बी इक्वल्स टू द प्रेशर ऑन द लार्जर पिस्टन एंड दैट इज इक्वल्स टू एफ बाई. और यहाँ पे लार्जर पिस्टन में हमको रखना है कार को, तो कार का फोर्स, कार का वेट जो है एज अ फोर्स यहाँ पे रखना पड़ेगा, उसका एरिया हमको दिया हुआ है. तो जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर. इज इट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। Yes, sir. सर हाँ बोलो. इसमें एरिया हाँ, सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसको मीटर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना? करना पड़ेगा ऑब्वियसली. तो उसका आएगा 4 ओके इंटू 10⁻⁻⁴ ऐसा होगा. ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर होता है. ओके, यस सर. चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ. चलो क्या लिखा है? यूट्यूब कंटेन्स वाटर एंड methylated spirit separated by mercury. Okay, the mercury column in the two arms are in a level of 10 centimeter of water in one arm and 12 centimeter 12.5 centimeter of a spirit in the other end. What is the specific gravity of a spirit? Okay, पहले क्वेश्चन को समझने की ट्राई करो. देखो, ऐसा दिया हुआ है कि हमारे पास एक यूट्यूब है, ये यूट्यूब है हमारे पास. ओके, और फॉर्चुनेटली क्या है कि जो मर्क्यूरी है ना, वो दोनों आर्म्स, यूट्यूब के दोनों आर्म्स पे मर्क्यूरी जो है ना, वो तो सेम हाइट से ही वहां पे बड़ा पड़ा है. ओके, बट उसके एक आर्म्स पे 10 सेंटीमीटर तक वाटर डाला हुआ है और दूसरे आर्म पे 12.5 सेंटीमीटर तक स्पिरिट डाला हुआ है. बट फॉर्चुनेटली ऐसा दिया हुआ है कि दोनों आर्म पे मर्क्यूरी का जो लेवल है ना, वो सेम ही है, और एक आर्म पे लगाया हुआ है वाटर. तो ये वाटर है 10 सेंटीमीटर तक, और दूसरे आर्म पे 12 सेंटीमीटर तक मिथिलेटेड स्पिरिट है. Sir, spirit मतलब एक टाइप का लिक्विड है, कैरोसिन जैसा होता है. okay sir. तो इसको पॉइंट ए बोल दो, इसको पॉइंट बी बोल दो. तो फ्रेंड्स, हमको ये पता है कि ग्राउंड से, मतलब अर्थ सरफेस से सेम हाइट पे जितने भी पॉइंट होते हैं वहां पे प्रेशर क्या होना चाहिए? सेम हाइट पे जितने भी पॉइंट होंगे वहां पे प्रेशर Same होगा. इक्वल होगा. इक्वल. तो
Can I say the pressure at the point A is exactly equal to pressure at the point B? Yes, sir. चलो मुझे सोच के बताओ कि पॉइंट ए पे प्रेशर कितना लिखना चाहिए मुझे, ये पॉइंट पे वाटर की H rho G. एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो वाटर जी एच वाटर. इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, sir. और बी पॉइंट पे प्रेशर कितना लिखना चाहिए मुझे? PA plus PA. rho methylene spirit. रो स्पिरिट जी हाइट ऑफ द स्पिरिट. इज इट ओके? Yes, sir. दोनों साइड से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैंसिल करते हैं. और अल्टीमेटली टारगेट इज व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी. स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब समझते हो फ्रेंड्स? अगर कहीं पे भी आपको स्पेसिफिक डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी ऐसा कोई वर्ड मिले तो उसका मतलब करना है आपको रिलेटिव डेंसिटी. ओके? Yes, sir. Yes. तो रो वाटर जी यहाँ पे 10 लिख दूं, वाटर का जो हाइट है वो. Yes, sir. वैसे सेंटीमीटर को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना चाहिए था बट मैं नहीं कर रहा हूँ. क्यों? बिकॉज दोनों साइड सेंटीमीटर है तो उसके यूनिट कैंसिल हो जाएगी. ओके? इक्वल्स टू के दोनों साइड है तो. ओके? Yes, sir. तो रो स्पिरिट डेंसिटी ऑफ स्पिरिट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर को अगर आप सब्जेक्ट को इक्वेशन बनाते हो तो ये हो जाएगा आपका 10/12.5. राइट? यस और नो? Yes, sir. बट फ्रेंड्स ये डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर को ही तो क्या बोलते हैं? रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक. density. हाँ, सो दैट इज व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ स्पिरिट. ओके? Yes, तो 10/12.5 sir. 0.8. तो वो आपको मिल जाएगा 0.8 समथिंग. ये जो मिथलेटेड स्पिरिट है उसका रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक डेंसिटी जो है या स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो 0.8 है. इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? सर हम डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन स्पिरिट करते तो भी राइट ही आता. दैट इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ द रिलेटिव डेंसिटी. रिलेटिव डेंसिटी का डेफिनेशन क्या है भैया? A density, the ratio of the density of a substance to the density of a water. Okay? Yes, sir. That is what is the definition of the relative density. Okay? Yes, sir. Yes. न्यूमरेटर में सब्सटेंस का होना चाहिए, डिनोमिनेटर में वाटर का होना चाहिए. ओके? Yes, sir. चलो क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना वो 9th के कॉन्सिक्वेंस पे ही है. उसको थोड़ा आपको सुनना है, समझना है. थोड़ा समझिएगा. अच्छा क्वेश्चन है. कुछ सोचने वाला क्वेश्चन अब आया. अब तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए थे वो सब ठीक थे. अभी ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा अच्छा है. थोड़ा सोचना पड़ेगा इस टाइप का. ओके, क्या लिखा है? इन द प्रीवियस प्रॉब्लम if 15 centimeter of water and spirit each are further poured into a respective arms of a tube. तो वाटर के अंदर वाटर डाला, स्पिरिट वाले आर्म के अंदर स्पिरिट डाला. देन व्हाट विल बी द डिफरेंस इन द लेवल. चलो पहले तो मुझे ये बताओ, पहले क्या था कि वो जो मर्क्यूरी का जो लेवल था ना वो बैलेंस था दोनों साइड. बट उसके लिए मैंने वाटर कितना डाला था? प्रीवियस क्वेश्चन 10 एंड 10 centimeter. हाँ, एंड उसके सामने मेथड 12.5. 12.5. बराबर. मतलब वाटर को 10 डाला था, जस्ट 10 सेंटीमीटर तक, और स्पिरिट को 12.5 सेंटीमीटर डाला था. तो एट दैट टाइम बैलेंस हो गया था. अब मैं है ना वाटर के कॉलम में 15 सेंटीमीटर वाटर डाल रहा हूं, स्पिरिट के कॉलम में 15 सेंटीमीटर स्पिरिट डाल रहा हूं. अब सोचो, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज वेदर
the mercury level will be balanced in both the side, yes or no? पहले तो मुझे ये बताओ कि अब मैंने जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो तो था ही, बट उसके अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने एक्सेसिवली वाटर के कॉलम में 15 सेंटीमीटर तक वाटर डाला, स्पिरिट के कॉलम में 15 सेंटीमीटर तक स्पिरिट डाला। तो अब मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि क्या मर्क्यूरी का जो लेवल है दोनों साइड सेम रहेगा, यस और नो? फर्स्ट क्वेश्चन। नो सर। नो, वेरी गुड। तो नहीं रहेगा। नो सर। हमको पता है कि भाई वाटर का जब 10 होता है तो सामने 12.5 डालना है, मतलब इक्वल इक्वल प्रोपोर्शन नहीं चलेगा। वाटर के कम प्रोपोर्शन के साथ स्पिरिट का ज्यादा प्रोपोर्शन जाएगा तो बैलेंस होगा। अब यहाँ पे तो मैंने दोनों का 15 सेंटीमीटर ही डाला एडिशनली, तो डेफिनेटली वो बैलेंस नहीं रहेगा। तो अब माय क्वेश्चन ऐसा, नाउ माय सेकंड क्वेश्चन इज, तो कहाँ पे लेवल नीचे आएगा मर्क्यूरी का और कहाँ पे ऊपर जाएगा? कौन से साइड नीचे आएगा और साइड नीचे आएगा। कौन से साइड वाटर में नीचे नीचे जाएगा? जाएगा। वाटर के साइड। वाटर में या नीचे जाएगा। एग्जैक्टली, वाटर जो है ना वो ज्यादा डेंसिटी वाला है, बिकॉज वाटर का कम प्रोपोर्शन ही स्पिरिट के वाटर का 10 सेंटीमीटर ही स्पिरिट के 12.5 को बैलेंस कर रहा था। तो वाटर का मतलब वाटर ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहा है स्पिरिट से, तो उसका मतलब अगर ऐसा है कि दोनों साइड इक्वल वॉल्यूम के वाटर एंड स्पिरिट डालेंगे तो वाटर का इफेक्ट ज्यादा रहेगा, तो उसका मतलब कि वाटर का थोड़ा नीचे जाएगा वाटर से, जो मर्क्यूरी कॉलम है वो, और स्पिरिट से थोड़ा ऊपर जाएगा। और वही तो क्वेश्चन है, दैट डिफरेंस यू वांट्स टू फाइंड, दैट इज व्हाट इज द क्वेश्चन। आपको वो डिफरेंस ही फाइंड करना है। तो क्वेश्चन समझ में आया पहले तो आपको? यस Yes. सर। चलो, सर तो अब एक बार वापस से वो YouTube ड्रॉ करेंगे, बट अब क्या करेंगे, अब हम दोनों साइड ये जो लेवल है ना मर्क्यूरी का वो सेम नहीं रखेंगे। बोलो, मुझे बताओ कौन से साइड नीचे ले जाएंगे उसके लेवल को? वाटर की साइड नीचे ले जाएंगे और स्पिरिट की साइड ऊपर ले जाएंगे। वेरी गुड। ओके, मुझे अब ये बताओ कि वाटर वाला जो पार्ट है वहां पे कहाँ तक मैं उसको भरूं, कहाँ तक फील करूं मैं वो, स्पीड से थोड़ा। कितने सेंटीमीटर तक फील करूं वाटर को? 25 25। ऑलरेडी 10 तो था ही, और एडिशनली मैंने कितना वाटर डाला? 15। 15 हाँ, ओके। तो अब यहाँ पे ये जो वाटर लेवल है ना उसका वैल्यू कितना आएगा भैया? 25। 25। और मुझे ये बताओ कि स्पिरिट का जो लेवल है वो मुझे कितना करना चाहिए था, अब कितना करना चाहिए? 27.5। 27 10.5 12.5 plus 15। Is that clear, friends? यस Yes. सर। यस सर ओके, अब इसको मैं बोल देता हूँ पॉइंट ए, और इसके एग्जैक्टली सामने जो है ना उसको मैं बोल देता हूँ पॉइंट बी। और ये जो डिफरेंस, क्या मैं कह सकता हूँ दिस विल बी द डिफरेंस ऑफ द हाइट इन द मर्क्यूरी कॉलम इन बोथ द साइड्स? यस सर। यस सर। यस सर चलो, इसको मैं H1 बोल देता हूँ, इसको H2 बोल देता हूँ, चलेगा? यस सर। चलो वापस से, कैन आई स्टार्ट फ्रॉम द सेम? यस Pressure at the point A is equals to pressure at the point B because they are both are from the same height from the ground. यस सर। से सेम हाइट पे है A एंड B, तो वहां पे प्रेशर सेम होना चाहिए। तो वापस से मैं यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ फ्रेंड्स? यस सर। यस सर चलो, किया मैंने। चलो, अब मुझे सोच के बताओ कि P एट पॉइंट A, प्रेशर एट द पॉइंट A, मुझे क्या लिखना चाहिए? PA plus H rho G PA प्लस
रो वाटर GH water. वाटर G एंड H के बदले लिखना चाहिए मुझे 25. इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके, चलो अब थोड़ा सोच के बताना मुझे कि बी पॉइंट पे प्रेशर मुझे क्या लिखना चाहिए. H plus PA plus और 7 बी एटमोस्फियर प्लस mercury G. rho रो Spirit. स्पिरिट spirit. Yes. GH. E into Plus 27.5 GH. plus H. 27.5 plus H. प्लस देखो ये देखो प्लस रो मर्क्यूरी जी हाइट ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम. देखो यहाँ पे बी पॉइंट तक जब आते हो तो यहाँ पे 3 प्रेशर को आप देख सकते हो. एक तो सबसे पहला एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एडिशनली ये वाला प्रेशर प्लस एडिशनली ये वाला प्रेशर. तो 1 2 3 प्रेशर कंबाइन होके यहाँ पे बी पे मिलेगा आपको. इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. Yes. तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आया मैंने क्या लिखा? Yes, Yes, sir. sir. इज दैट अंडरस्टूड? Yes, ओके, sir. एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों साइड से कैंसिल कर देते हैं और मैं ना पूरे इक्वेशंस को डेंसिटी ऑफ वाटर से डिवाइड कर देता हूं. चलेगा? Yes, sir. तो दोनों साइड डेंसिटी ऑफ वाटर से डिवाइड कर देता हूं तो ये कैंसिल हो जाएगा. Yes, sir. तो ये बचेगा आपका 25 इंटू जी. ओके, यहाँ पे बचेगा आपका रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ स्पिरिट बिकॉज डेंसिटी ऑफ स्पिरिट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर. तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्पिरिट हो जाएगा. Sir, GB common and cancel हो गया. हाँ, कल एक स्टेप उसके नेक्स्ट स्टेप में वही करेंगे. और ये डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर. तो कहना ऐसे इट इज अ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ मर्क्यूरी Yes. into G into height difference of a mercury. G get cancelled from all the three sides. Is that clear, friends? Yes, sir. Yes, ये आपका 25. चलो आपने रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी अभी निकाला था. क्या निकाला था? 0.8. 0.8. Relative density 0.8 into 13.6. 27.5 प्लस रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ मर्क्यूरी दिया हुआ है. जो दिया हुआ है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी Yes, sir. 13.6 और H ही तो मुझे फाइंड करना है. find करना है. हाँ, चलो ये 27.5 को 0.8 से मल्टीप्लाई करो 22. तो ये आपका मिलेगा एग्जैक्टली 22 मिलेगा. तो एक काम करो आप है ना 25 माइनस 22 करो 3. 3 और डिवाइड बाय 13.6 करो. 3 डिवाइड बाय 13.6 0.2. 0.2. 0.2 के बाद क्या आ रहा है? 0.220. 22 आपका हो जाएगा 0.22. ये सेंटीमीटर में ही आंसर मिलेगा आपको. क्यों? बिकॉज जितने भी यहाँ Okay, सब सेंटीमीटर में. वो 20 सेंटीमीटर में ही हमने रखे हुए हैं तो आपका आंसर भी सेंटीमीटर में ही आएगा. Centimeter. इज दैट क्लियर, फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, 3 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 13.6. हाँ बराबर है. परफेक्ट. आया बात समझ में, फ्रेंड्स? Yes, sir. तो दैट शुड बी द डिफरेंस ऑफ द हाइट, डिफरेंस ऑफ द लेवल ऑफ मर्क्यूरी बोथ द आर्म्स. ओके, आया बात समझ में? Yes, sir. तो देखते हैं कि Yes, sir. वही आंसर है कि नहीं है. या 0.22 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर. तो आपको एक यहाँ पे मैंने एक स्पेस दिया हुआ है. तो वो क्यों दिया है? फिगर को ड्रॉ करने के लिए. तो ये फिगर को ड्रॉ करने के लिए मैंने आपके नोट्स में स्पेस दिया हुआ है. वहां पे ये जो फिगर है ना वो नहीं दिया हुआ है तो मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको भेज देता हूँ. आफ्टर दैट यू कैन जस्ट ड्रॉ द फिगर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ओके, Yes, sir. Yes, sir. भेज दूंगा. ओके, तो नोट्स के अंदर यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है फिगर ड्रॉ करने के लिए. ओके, Yes, sir. बट मेन तो ये इक्वेशन कहाँ से आया वो आपको समझ में आ गया भैया? ये वाला इक्वेशन
यहाँ पे 3 स्टेप क्यू है राइट साइड Yes. को। Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन, चलो। तो अभी जितने भी क्वेश्चन है ना वो सारे फ्लूइड डायनेमिक्स के रिगार्डिंग है, फ्लूइड स्टैटिक्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कंप्लीट किए। अब हम डायनेमिक्स पार्ट पे जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली फ्लूइड डायनेमिक्स में हम क्या करेंगे, फ्लूइड को फ्लो करा। Motion में. मोशन में लाएंगे। हाँ, तो उसके अलग अलग टाइप के जो मोशंस है उसके बारे में थोड़ा ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद दो जो कंसेप्ट है डायनेमिक्स में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और दूसरा है बर्नौलीज इक्वेशन। ये दो चीज जो है ना डायनेमिक्स की वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, कुछ अलग अलग टाइप के फ्लोस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टेडी फ्लो किसको बोलते हैं? देखो अभी ऑब्वियसली हमने डायनेमिक स्टार्ट किया है तो ऑब्वियसली फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, ऑब्वियसली फ्लूइड के फ्लो के बारे में डिस्कस करना है। तो स्टेडी फ्लो किसको बोलते हैं कि भाई the flow of a fluid is said to be a steady if at any given point the velocity of each passing fluid particle remains constant in the time। मतलब क्या है, थोड़ा मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं। स्टेडी फ्लो किसको बोलते हैं? तो भाई जहां पे फ्लूइड फ्लो हो रहा है वहां पे कोई भी पॉइंट आप देख लो, कोई भी पॉइंट को कंसीडर करो, वहां से जब फ्लूइड पास होगा तो उसका वेलोसिटी टाइम के साथ वेराई नहीं होता है, तो उसको स्टेडी फ्लो बोलते हैं। मैं थोड़ा आपको एक एग्जांपल दूं। मान लो कि यहाँ से कोई फ्लो हो रहा है फ्लूइड का और आप यहाँ पे खड़े हो। ओके, मान लो कि आप यहाँ पे खड़े हो और आपकी आंख ऐसी है कि आप ये 3 पॉइंट से जो फ्लूइड पास हो रहा है, ये फ्लूइड कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है यहाँ से, और मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट कंसीडर किए पी क्यू एंड आर। 3 पॉइंट मैंने वहां पे कंसीडर किए पी क्यू एंड आर। और हम ऐसा मान लेते हैं कि ये जो बंदा खड़ा है यहाँ पे वो ऐसा है कि वो देखते ही पता कर सकता है कि वेलोसिटी क्या है। तो यहाँ से जब फ्लूइड पार्टिकल पास हुआ तो पता चला कि उसका जो पी पॉइंट पे जो वेलोसिटी था ना वो पता किया तो पता चला कि वो 5 मीटर पर सेकंड है। क्यू पॉइंट पे जब वो पार्टिकल आता है तो उसका वेलोसिटी जो होता है ना वो ऐसा पता किया कि भाई क्यू पॉइंट पे वो वेलोसिटी 7, मान लो कि वो 7 मीटर पर सेकंड है। और जब वही पार्टिकल जब वहां से पास होते 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 पार्टिकल जब आर पे आता है तो पता चलता है कि वहां पे जो वेलोसिटी है वो मान लो कि 4 मीटर पर सेकंड है। अब ये बंदा आधे घंटे के लिए बाहर गया और बाहर जाके वापस आया, आधे घंटे के बाद वापस आया, वापस से उसने देखा पी पॉइंट को, क्यू पॉइंट को, सी आर पॉइंट को, तो पता चला कि जो वेलोसिटीज पहले थी वही की वही है। तो इस टाइप के अगर कोई फ्लो है तो उसको क्या बोलते हैं? Steady flow. कि जहां पे मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि हर एक पॉइंट पे सेम होना चाहिए, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, बट द फ्लो इन विच एट अ गिवन पॉइंट the velocity of the fluid particle remains invariant with the time, that is called the steady flow। चलो ये पता चला आपको फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, sir. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि हर एक पॉइंट पे फ्लूइड पार्टिकल के वेलोसिटी सेम होना चाहिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, बट जो भी वेलोसिटी जिस पॉइंट पे है वो क्या होना चाहिए? टाइम के साथ Vary नहीं होना चाहिए. वैरी नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप के जो फ्लो है उसको स्टेडी। Steady flow. इज दैट क्लियर फ्रेंड? Yes, sir. ओके फ्रेंड्स, आपको पता है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन हमको कैसे फाइंड करना होता है? कोई भी अगर कोई पार्टिकल के ट्रेजेक्टरी, आप अगर कोई पार्टिकल का कोई ऐसा ट्रेजेक्टरी है जैसे सर्कुलर ट्रेजेक्टरी है, तो कोई भी पॉइंट पे अगर आपको वेलोसिटी फाइंड करना है तो आप क्या करोगे? Tangential. टेंजेंट ड्रॉ करोगे। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. यस। तो ये कोई फ्लूइड पार्टिकल का ट्रेजेक्टरी है
तो फ्लूइड पार्टिकल का जो ट्रेजेक्टरी है ना उसको स्ट्रीम लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रीमलाइन। या उसको लाइन ऑफ फ्लो भी बोल सकते हैं या स्ट्रीम लाइन बोल सकते हैं। तो ये स्ट्रीम लाइन के कोई भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? वहां पे फ्लूइड पार्टिकल के वेलोसिटी मिल जाएगा। वेलोसिटी का डायरेक्शन मिल जाएगा। एम आई राइट फ्रेंड्स? यस सर। yes sir, बट अगर फ्लो स्टेडी है, अगर हमारा फ्लो स्टेडी है तो कोई भी पॉइंट पे हमको पता है कि वेलोसिटी का वैल्यू टाइम के साथ वेरी नहीं होता है। वेरी नहीं होगा। तो उसका मतलब ऐसा है कि ये स्ट्रीम लाइन भी, देखो ये जो टेंजेंट्स है ना वो वेलोसिटी शो करते हैं। तो मैंने बोला कि स्टेडी फ्लो के अंदर वेलोसिटी जो है ना वो वेरी नहीं होता है। तो इसका मतलब कि जो टेंजेंट रहेगा वो वही का वही रहेगा। तो अगर टेंजेंट वही का वही रहेगा तो उसका कर्व जो है ना, जो कर्व है, जो स्ट्रीमलाइन है, जो लाइन ऑफ फ्लो है, उसको भी वेरी नहीं करना उसको भी हम वेरी नहीं कर पाएंगे। बिकॉज अगर ये लाइन ऑफ फ्लो वेरी होगा तो फिर क्या होगा? तो टेंजेंट वेराई हो जाएगा। अगर टेंजेंट वेराई हो जाएगा तो क्या होगा? तो वेलोसिटी भी वेराई हो जाएगा। बट हमको पता है कि स्टेडी फ्लो में ऐसा नहीं होता। नहीं नहीं होता है। होता। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि स्टेडी फ्लो के अंदर लाइन ऑफ फ्लो होती है वो टाइम के साथ वेराई नहीं होती। नहीं होती। तो इस टाइप के लाइन ऑफ फ्लो को स्ट्रीम लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रीमलाइन। एंड दैट इज वाई स्ट्रीमलाइन। हाँ, that is why the steady flow sometimes also considered to be a streamline flow. उसको streamline भी flow भी बोल सकते हैं। Is that clear? यस सर। yes sir. कोई भी फ्लूइड पार्टिकल्स के जो ट्रेजेक्टरी है उसको लाइन ऑफ फ्लो बोलते हैं। बट अगर वो ट्रेजेक्टरी टाइम के साथ वेराई नहीं होती है तो उसको स्ट्रीमलाइन बोलेंगे। अगर वो टाइम के साथ वेराई होती है तो उसको स्ट्रीमलाइन नहीं बोल सकते, उसको लाइन ऑफ फ्लो ही बोलेंगे। बट अगर आपका फ्लो स्टेडी है तो आपका लाइन ऑफ फ्लो टाइम के साथ वेराई नहीं होगा तो उसको स्ट्रीम लाइन बोल सकते हैं। एंड दैट इज व्हाई अ स्टेडी फ्लो इज आल्सो कंसीडर्ड टू बी अ स्ट्रीम लाइन फ्लो। जो अनस्टेडी फ्लो है, तो अनस्टेडी फ्लो है तो वहां पे लाइन ऑफ फ्लो आप लाइन ऑफ फ्लो बोल सकते हो बट उसको स्ट्रीम लाइन। नहीं बोल नहीं सकते। बोल सकते। I can say in the unsteady flow we can define the line of flow but we cannot define the stream. स्ट्रीमलाइन। Is that clear friends? yes सर। सर चलो हाँ बोलो। सर ये मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी है तो हर एक पॉइंट पे तो अलग अलग ही होगी ना। हाँ मैं वही तो कब का बोल रहा हूँ, हर एक पॉइंट पे अलग अलग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, उसका कोई मायने नहीं रखता। बट टाइम के साथ वो, वेरी नहीं होनी चाहिए। हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ। मैंने इसीलिए एग्जाम्पल भी ऐसा लिया था कि पी पॉइंट पे 5 था, पी क्यू पॉइंट पे 7 था, आर पॉइंट पे कुछ 4 था, अलग अलग था। बट वो आधे घंटे के बाद भी वही का वही रहे, मतलब वो टाइम के साथ वेराई नहीं हो सकता। एग्जैक्टली यस सर क्लियर। अलग अलग पॉइंट पे उसका वैल्यू अलग अलग हो सकता है। इट इज नॉट रिक्वायर्ड, इट इज नॉट नेसेसरी। इज दैट क्लियर? यस सर। yes sir. सर। ओके चलो हेत, यू वांट्स टू आस्क एनीथिंग? yes sir. हाँ बोलो, क्या पूछना चाहते हो? सर चैट में लिखा है। नहीं आप बोल के बोलो ना, ऐसे चैट मतलब ये मेरा पढ़ाने का फ्लो डिस्टर्ब होता है। आप बोलो, कोई बात नहीं, बोलो। Sir, at a particular instance and a point of velocity At must be must be invariant with the time. क्या क्वेश्चन क्या है आपका? फिर से बोलो, क्या पूछना चाहते हो? सर मतलब कोई एक पॉइंट पे वेलोसिटी सेम ही रहेगी ना। हाँ टाइम के साथ वो वेराई नहीं करेगी डेफिनेटली। अलग अलग पॉइंट पे उसका वैल्यू अलग अलग हो सकता है, ओके वो फिक्स्ड होगा, टाइम के साथ वेराई नहीं होगा। ओके यस देखो मैं रीड करता हूँ, कराऊंगा करूंगा तो आपको इसमें लिखा हुआ है सारा चीज, तो एक बार हम पढ़ लेते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है। राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग अ स्टेडी फ्लो। ये आपको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, आपको समझने की जरूरत है, इसके कंसेप्ट को समझना है। A flow of a fluid is said to be a steady if at any given point the velocity of each passing
fluid particle remains constant in the time. This means that the velocity of any particle of the fluid remains the same which passes through the given point. For the given point, it remains the same. For example, let the velocity of the each particle passing through the point P, Q, and R are Vp, Vq, and Vr respectively. Here, देखो, it is not necessary that Vp, Vq, and Vr are same. It is not necessary. It is not necessary. But the necessary thing is that Vp, Vq, and Vr must be remains the same with the time. Okay. And when Yes. when any particle pass at the point P, its velocity always remains the Vp. When it pass from the point Q, its velocity remains Pq. And when it is passed from point R, its velocity remains Vr. This velocity will not be changed with the time. If the fluid has a less velocity, then its motion is said to be a steady. देखो steady flow के example जो है ना, मैं आपको एक simple सी चीज बताऊं. फ्रेंड्स, एक आप सोचो कि कोई पॉन्ड है और वहां पे फ्लो एकदम धीरे 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 हो रहा है, और वहां पे अगर आपका कोई पैर या हाथ वहां पे डालते हो और आपको ऐसा फील होता है कि एट एवरी टाइम द फ्लो जो है ना वो आपको इक्वली फील होता है, कभी ज्यादा या कभी कम नहीं फ्लो होता है, तो उसका मतलब कि जिस पॉइंट में आपने हाथ डाला हुआ है, पैर डाला हुआ है, वहां पे फ्लो कैसा है? स्टेडी फ्लो। अगर आपको ऐसा फील होता है कि भाई अचानक से जो करंट है, फ्लूइड करंट है, वो बढ़ता है, कभी डिक्रीज होता है, तो इसका मतलब कि वो फ्लो कैसा हो जाएगा? अनस्टेडी हो जाएगा. इज दैट क्लियर? तो ये एक्सपीरियंस करने की चीज है. इज दैट क्लियर? अ स्लोली फ्लोइंग विंड, Yes, sir. स्लो मोशन ऑफ द वाटर स्ट्रीम, स्लो मोशन ऑफ द वाटर स्ट्रीम या स्लोली flowing winds are example of the steady flows. Is that clear? Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, उसी कॉन्सिक्वेंस पे है कि स्ट्रीमलाइंस एंड स्ट्रीमलाइन फ्लो किसको बोलते हैं. तो मैंने अभी आपको बताया कि जो स्टेडी फ्लो है ना, उसमें हम स्ट्रीमलाइन डिफाइन कर सकते हैं. अनस्टेडी फ्लो में हम स्ट्रीमलाइन डिफाइन नहीं कर सकते हैं. उसमें लाइन ऑफ फ्लो होगी बट उसको स्ट्रीमलाइन नहीं बोल सकते अनस्टेडी फ्लो में. तो देखो क्या लिखा है, द पाथ ऑफ मोशन ऑफ अ फ्लूइड पार्टिकल इज कॉल्ड लाइन ऑफ फ्लो. तो लाइन ऑफ फ्लो तो कहीं भी आप डिफाइन कर सकते हो, चाहे स्टेडी है या अनस्टेडी है. बट अगर आपका फ्लो स्टेडी है तो आपका जो लाइन ऑफ फ्लो होगा वो टाइम के साथ वेरी नहीं होगा. वेरी नहीं होगा. तो इस टाइप के लाइन ऑफ फ्लो को क्या बोल सकते हैं हम? स्ट्रीमलाइन. स्ट्रीमलाइन. लाइन. देखो अब क्या लिखा है, द पाथ टेकन बाय द फ्लूइड पार्टिकल under a steady flow is a streamline. Is that clear? Yes, sir. तो स्ट्रीमलाइन के डेफिनेशन हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई अ कर्व whose tangent at any point. देखो ये स्ट्रीमलाइन जो है ना वो लाइन ऑफ फ्लो ही है, तो उसके कोई भी पॉइंट पे टेंजेंट आप ड्रॉ करो तो आपको क्या मिलेगा? आपको फ्लूइड पार्टिकल का वेलोसिटी मिलेगा. द कर्व whose tangent at any point in the direction of the fluid velocity is in the direction a curve whose tangent at any point is in the direction of the fluid velocity at that point. This kind of curve is known as a streamline. तो ये उसका definition है. Okay? अब Yes. of the सर जब particle, हाँ स्टेडी बोलो. फ्लो का तभी स्ट्रीमलाइन होगी ना वो. हाँ, वो स्टेडी फ्लो के लिए ही ये डिफाइन कर सकते हैं हम, अनस्टेडी के लिए नहीं कर सकते. ओके. यस. The path of particle is shown in figure. Okay, is indicates a streamline. The velocity of the particle at any point in the direction of the tangent drawn at that point is that it is okay. The flow for which such streamline can be defined is called the streamline flow. In unsteady flow, देखो ये sentence देखो. In unsteady flow, you can define the flow of line. Flow of line can be defined, but we cannot define the streamline in the case of unsteady flow. Is that clear? In Yes. flow, streamline can never intersect each other. If they intersect each other at the point of intersection, देखो एक और चीज है कि स्ट्रीमलाइन है ना कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, बिकॉज
अगर हम ऐसा मान लेते हैं कि दो स्ट्रीमलाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यू विल हैव अ टू काइंड ऑफ टेंजेंट, और आपको पता है कि ये टेंजेंट तो फ्लूइड पार्टिकल का वेलोसिटी शो करता है, तो इसका मतलब कि एक ही पॉइंट पे फ्लूइड पार्टिकल के दो दो वेलोसिटी आपको मिलेंगे। क्या ये पॉसिबल है? नो सर। नो इसका सर। दूसरा मीनिंग ऐसा है कि जो स्टेडी फ्लो होता है वहां पे स्ट्रीमलाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर नहीं करेगी, बिकॉज अगर वो इंटरसेक्ट करेगी तो एक ही पॉइंट पे आपको दो टेंजेंट मिलेंगे, मतलब एक ही पॉइंट पे आपको दो फ्लूइड के वेलोसिटी, एक ही पार्टिकल के दो अलग अलग वेलोसिटी मिलेंगे, तो which is not possible, and that is why we can say two streamline can never intersect each other. Is that clear? सर अनस्टेडी में तो होगा ही ना। अनस्टेडी में तो वो कंटिन्यूअसली वेरी हो सकता है टाइम के साथ। ओके, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं है, बट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो हम नेक्स्ट इसके बाद का जो टॉपिक है वो लेने वाले हैं, उसमें इसका जरूरत है। अ ट्यूब ऑफ फ्लो। सर ट्यूब, हाँ बोलो। सर स्ट्रीमलाइन और स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या फर्क है? भाई स्ट्रीमलाइन जो है ना वो कर्व है, और जिस फ्लो के अंदर हम ये कर्व डिफाइन कर सकते हैं उसको स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं। एक जो है वो फ्लो है और दूसरा जो है वो कंसेप्ट है। ओके, यस सर। स्ट्रीमलाइन इज अ कर्व, or we can say streamline is just a simple streamline is a line of flow in the steady flow। steady flow के अंदर जो कोई भी पार्टिकल का जो ट्रेजेक्टरी है उसको लाइन ऑफ फ्लो, ट्रेजेक्टरी मतलब लाइन ऑफ फ्लो, तो स्टेडी फ्लो के अंदर कोई भी एक पार्टिकल का आप ट्रेजेक्टरी अगर कंसीडर करते हो तो दैट विल बी अ लाइन ऑफ फ्लो एंड दैट इज आल्सो अ स्ट्रीम लाइन। और जहां पे आप ये स्ट्रीम लाइन आप डिफाइन कर सकते हो उसको स्ट्रीम लाइन फ्लो बोलते हैं। Indirectly we can say a steady flow can be defined as a streamline flow as well। Okay, यस सर। चलो अब ट्यूब ऑफ फ्लो किसको बोलते हैं? तो फ्रेंड्स ये कोई स्टेडी फ्लो के अंदर बहुत सारी स्ट्रीमलाइन आप यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये पूरे स्ट्रीमलाइन को हम एक इमेजिनरी बाउंडेड स्पेस के द्वारा हम शो कर सकते हैं। तो ये वैसे इमेजिनरी सिलेंडर है, इमेजिनरी एक टाइप का पाइप है, बट इट विल बिहेव एज अ रियल पाइप। पूछो क्यों? क्यों? बिकॉज देखो पाइप का यूज क्या होता है, ये पीवीसी पाइप वगैरह का यूज क्या होता है? वाटर को फ्लो कर। हाँ, वाटर को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाना विदाउट द लीकेज, राइट? विदाउट द लीकेज, एम आई राइट फ्रेंड्स? यस सर। यस। तो मैंने है ना ये यहाँ पे 5-6 स्ट्रीम लाइन का बंडल बनाया हुआ है और उसको मैंने एक एंक्लोज किया है एक इमेजनरी कर्व के द्वारा, तो मुझे एक इमेजनरी पाइपलाइन जैसा मिला। बट भले ही ये पाइपलाइन इमेजनरी है बट वो रियल पाइपलाइन एज अ बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि अगर किसी पार्टिकल को लीक करना है, ये पाइपलाइन में से लीक करना है, बाहर निकलना है, तो उसको उसका फ्लो ऐसा होगा बाहर निकलने के लिए। किसी Yes, sir. यस सर। में से बाहर Yes, निकलना है sir. तो उसका फ्लो ऐसा होना चाहिए कहीं से, यस और नो? बट जैसे यस। वो ऐसा फ्लो अचीव करेगा तो क्या हो जाएगा, दो स्ट्रीमलाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगे। Intersect. इंटरसेक्ट कर देगी। बट ऐसा तो होने वाला नहीं है, ऐसा तो होने वाला नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो एक भले लंबाई ही ये पाइपलाइन इमेजिनरी है बट इट विल बिहेव एज अ रियल पाइपलाइन, बिकॉज ये जो फ्लो है ना, ये जो पार्टिकल फ्लो हो रहे हैं वो विदाउट द लीकेज विल ट्रांसफर फ्रॉम दिस पॉइंट टू पॉइंट बी, एंड दिस काइंड ऑफ इमेजिनरी पाइपलाइन, this kind of imaginary tube is known as a tube of flow। Is that clear? यस सर। तो ये ट्यूब ऑफ फ्लो का डेफिनेशन वैसे आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट इसका कंसेप्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इक्वेशन ऑफ द कंटिन्यूटी। इट इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उसके लिए ये जरूरी है ये कंसेप्ट समझना। देखो क्या लिखा है, अ ट्यूब ऑफ फ्लो is a bundle of a streamline
the velocity of each fluid particle on the cross section perpendicular direction proportion of a fluid in the tube is the same. When the flow of a fluid pass through this tube of flow, it behave like a real tube. Is that understood, friend? Yes, sir. तो ये भले ही इमेजिनरी ट्यूब है, स्टीम लाइन के बंडल के द्वारा एंक्लोज की हुई एक इमेजिनरी सिलिंड्रिकल ट्यूब हमने इमेज किया है, बट वो रियल ट्यूब बिहेव करेगी बिकॉज कोई भी पार्टिकल इसमें से बाहर नहीं निकलेगा. अगर उसको निकालना है तो स्ट्रीम लाइन को इंटरसेक्ट करना पड़ेगा, वो पॉसिबल नहीं है. तो अब हम एक ट्यूब ऑफ फ्लो को कंसीडर करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में एंड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी डिराइव करेंगे. तो द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज डिराइव द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. चलो, तो फ्रेंड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैंने आपको बताया कि जो ये आप फ्लूइड डायनेमिक्स हम पढ़ रहे हैं वहां पे दो कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कौन कौन से दो कंसेप्ट? एक है आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और दूसरा होगा बर्नौलीज इक्वेशन. बर्नौलीज इक्वेशन. हाँ, तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. तो उसके सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है वो हम डिराइव करेंगे. तो इन द फिगर वी हैड कंसीडर स्टेडी फ्लो एंड दिस इज आवर ट्यूब ऑफ फ्लो. तो हमको पता है कि ट्यूब ऑफ फ्लो भले ही इमेजिनरी है, बट इट विल बिहेव एज अ रियल ट्यूब. रियल ट्यूब, वो आपको पता है. तो यहां पे मान लो कि ऐसे कोई P, Q एंड सेक्शन R, सेक्शन P है, सेक्शन Q है, सेक्शन R, हमने तीन यहाँ पे क्रॉस सेक्शन अज्यूम किए हुए हैं. हम ऐसा मान सकते हैं कि ये पूरे क्रॉस सेक्शन में जो फ्लूइड पार्टिकल पास होते हैं वो पूरे एक क्रॉस सेक्शन में जितने भी पार्टिकल है ना उसके वेलोसिटी सेम है, ऐसा मान सकते हैं. तो मान लेते हैं कि ये P जो है ना पॉइंट, वहां पे जो वेलोसिटी है वो VP है फ्लूइड पार्टिकल. R क्रॉस सेक्शन में से जब पार्टिकल पास होते हैं तो मान लेते हैं कि उसका जो वेलोसिटी है वो VR है एंड Q पे ऑब्वियसली VQ वेलोसिटी ऐसा मान लेते हैं. इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो AP है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन AQ है और यहाँ पे क्रॉस सेक्शन जो है वो मान लेते हैं कि और यहाँ पे AR होगा. R मानेंगे और यहाँ पे AQ है ऐसा मान लेंगे. ओके फ्रेंड्स? यस सर. यस. अब वेलोसिटी क्या है भैया? Can I say it is a distance per unit time? Yes sir. Is that clear? Yes sir. Okay. फ्रेंड्स, आप सोचो एट पॉइंट P volume of a fluid passing per unit time. P पॉइंट पे सोचो जरा कि मुझे क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड फाइंड करना है पर यूनिट टाइम. तो फ्रेंड्स सोचो कि अगर वॉल्यूम पर यूनिट टाइम आपको फाइंड करना है, मतलब वॉल्यूम अपॉन टाइम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू आपको पता है क्या, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू द लेंथ. Am I right friends? यस सर. तो फ्रेंड्स वॉल्यूम इज इक्वल क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ, बट लेंथ और डिस्टेंस अपॉन टाइम तो क्या होता है? बोलो. वेलोसिटी. तो कैन आई से इट इज A into V? Yes sir. तो वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड passing per unit time, can I say it is a cross sectional area of the point P into velocity at the point P?
चलो ये पता चला आपको कहाँ से आया? यस सर। यस या फ्रेंड्स, एक और मैं बता दूं आपको कि वॉल्यूम पर यूनिट टाइम जो होता है ना, उसको वॉल्यूम फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम इट्स फ्लक्स। अ न्यू क्वांटिटी कम्स अंडर द पिक्चर। नया क्वांटिटी पिक्चर में आया, वॉल्यूम फ्लक्स। तो अगर आपको कोई ऐसा बोले कि भाई व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द वॉल्यूम फ्लक्स, तो वॉल्यूम फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछे कोई आपको, तो वॉल्यूम फ्लक्स और कोई नहीं, इट इज अ वॉल्यूम अपॉन टाइम पर यूनिट टाइम। तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला इट इज अ मीटर क्यूब पर सेकंड। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा एल क्यूब टी माइनस वन। इज दैट क्लियर? यस सर। तो वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड पासिंग पर यूनिट टाइम इज अ एपीवीपी। तो मुझे है ना मास फाइंड करना है। तो मास ऑफ अ फ्लूइड passing through unit time at point P, तो इज इक्वल्स टू, मुझे ये बताओ कि मुझे मेरे पास वॉल्यूम है और मुझे मास फाइंड करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? वॉल्यूम, डेंसिटी हाँ आपको पता है कि भैया डेंसिटी क्या हो? मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी आपका होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो अगर आपको मास फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा भैया? Density into volume. तो आपके पास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। हाँ वॉल्यूम पर यूनिट टाइम है, तो आपको मास पर यूनिट टाइम, मास पर यूनिट टाइम को क्या बोल सकते हैं हम? इसको मास फ्लक्स भी बोल सकते हैं भैया। बट मुझे मास अगर फाइंड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम तो है हमारे पास, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम तो हमारे पास है, अगर उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मास पर यूनिट टाइम फ्रॉम द पॉइंट पी मिल जाएगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। now now in a steady flow, this tube of a flow behave like a real tube, behave like a real tube। तो बीच में से कहीं पे आपका मास, कोई भी पार्टिकल बीच में से लीक नहीं होगा। तो मतलब ये हुआ कि जितना मास जितने टाइम में से ये पी क्रॉस सेक्शन में से बाहर निकलेगा, उतना ही मास उतने ही टाइम में आर में से भी जाएगा और क्यू में से भी जाएगा, बिकॉज बीच में से कहीं पे तो वो लीक नहीं होने वाला है। नाइदर इज गोइंग टू बी क्रिएटेड नॉर इज गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड नॉर गोइंग टू बी लीक। तो जितना पी सेक्शन में एंटर होगा उतना ही क्यू में से बाहर निकलेगा। इज दैट क्लियर? यस सर। So can I say mass from mass flux, that is a mass per unit time in each of the cross section is the same? जितना मास यस सर। यस सर। सेकंड, हाँ यूनिट टाइम के अंदर जितना मास पी में से पास होगा उतना ही आर में से जाएगा, उतना ही क्यू में से जाएगा, बिकॉज वो बीच में डिस्ट्रॉय नहीं होने वाला है, ना ही वो क्रिएट होने वाला है, ना ही बाहर से अंदर जाएगा अंदर से बाहर जाएगा, वैसा पॉसिबल नहीं है। तो जितना भी एंटर होगा उतना ही बाहर निकलेगा। इज दैट क्लियर? तो mass flux at the point P must be equals to the mass flux at the point Q and must be equals to mass flux at the point R. Is that clear? यस सर। अब पॉइंट P पे मुझे क्या लिखना चाहिए? AP VP रो P, राइट? पॉइंट Q पे मुझे क्या लिखना चाहिए? AQ VQ रो Q, राइट? पॉइंट R पे मुझे क्या लिखना चाहिए? AR VR रो R। Is that clear friends? AR VR रो R। Is that clear? यस सर। अब सीधी सी बात है फ्रेंड्स, ये पी पॉइंट में अगर आप पानी डालते हो, पानी, तो यहाँ से ऑयल बाहर निकलेगा?
No, sir. यस और नो? No, sir. No, sir. नहीं निकलेगा ना भैया। अगर ऐसा होता तो मैं ये पढ़ाने का काम ही नहीं करता। ऐसा कोई ट्यूब मेरे पास होता जैसे एक साइड से पानी डालो दूसरे साइड से ऑयल बाहर निकले तो वही ना करता। खाली यहाँ पे पढ़ाने से क्या वो ऑटोमेटिकली पैसे बनते। आया बात समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं? क्या समझ में? Yes, sir. Yes. है पॉसिबल ऐसा? सर नहीं है सर. नहीं है तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि डेंसिटी जो है ना वो वही का वही रहेगा ना। डेंसिटी चेंज नहीं होगा बिकॉज मटेरियल तो वही का वही रहता है। तो क्या ये डेंसिटी को तीनों साइड से मैं कैंसिल कर दूं? Yes. यस तो अभी आपका जो इक्वेशन हो गया वो APVP इज इक्वल्स टू AQVQ इज इक्वल्स टू ARVR हो गया। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस तो कैन आई से इट इज इक्वल्स टू AV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। आपने शायद केमिस्ट्री में पढ़ा होगा P1V1 इज इक्वल्स टू P2V2 बॉयल्स लॉ। तो मतलब PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ऐसा कुछ पढ़े हो आप? यस यस सर तो वही हुआ ना यहाँ पे A1V1 इज इक्वल्स टू A2V2 इज इक्वल्स टू A3V3। दैट मीन्स A into V इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। इज दैट क्लियर? यस सर और ये जो मुझे मिला ना उसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ, ये जो इक्वेशन मुझे मिला उसी को बोलते हैं इक्वेशन। कंटिन्यूटी ऐसा भी सोच सकते हैं कि जो वेलोसिटी है ना दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। AV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट मतलब V प्रोपोर्शनल टू 1/A। और ये प्रैक्टिकली आप करते हो, आप जाने अनजाने में ये चीज करते ही हो। आप चलो घर पे बेसिन के अंदर जो टैप है मतलब जो नल है आपका, तो उसका थोड़ा आप क्रॉस सेक्शन अगर आप उसको बंद कर देते हो आधा क्रॉस सेक्शन तो क्या फील होता है? वेलोसिटी बढ़- बढ़ जाता है ना। Yes, sir. बढ़ जा स्पीड में आता है. हाँ, कभी कभी आपने देखा होगा गार्डन में जो गार्डनर होता है वो, हाँ सर, वो पाइप के आगे वो उंगली यस रखा सर होता है. हाफ आप थोड़े साइड में से देखोगे तो कुछ अलग ही नजारा दिखाई देगा। कवर कर देते हैं हाँ, तो अगर साइड में से देखोगे तो आपको कुछ अलग ही दिखाई देगा। बट आपने देखा होगा कि वो जो है ना वो पाइपलाइन को थोड़ा अगर बंद करता है तो उसका स्ट्रीम ज्यादा दूर तक जाता है। क्यों? बिकॉज वेलोसिटी बढ़ता है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर यस सर तो दैट इज व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड दीज आर द एग्जांपल्स। तो क्या ये चीज आपको समझ में आया भैया? Yes, sir. Yes, sir. यस तो फ्रेंड्स इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब बर्नौलीज इक्वेशन हमको पढ़ना है बट वो थोड़ा आधे पौने घंटे का एक पूरा एक टास्क है, वो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। बट इसको फटाफट एक बार देख लेते हैं क्या हमने जो पढ़ा वो बराबर है। क्वेश्चन नंबर 25, इट इज अ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखो क्या लिखा है। कंसीडर अ ट्यूब ऑफ फ्लो एज शोन इन फिगर, नंबर no any particle go outside from the tube, neither can enter in this tube and it is behave like a real tube। वो अभी हमने डिस्कस किया। am I right friends? अरे हाँ के ना तो बोल दो। Yes, sir. consider point P, R and Q on the tube। suppose VP, VQ and VR are the respective velocities at the point P, Q and R. At the cross sectional area is VP, VQ and VR. Okay, since the flow is steady, so the number of particles passing from P, Q and R are same through the cross section area। now considering the cross section area P, तो P क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको डेल्टा T टाइम के लिए सोचते हैं। तो फ्रेंड्स अगर थोड़ा यहाँ पे है ना मैंने पर यूनिट टाइम लेके पूरा सॉल्व किया था, यहाँ पे डेल्टा T लेके सॉल्व किया है। तो कोई बात नहीं, आप सिंपल सोचो कि अगर मेरा वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है तो मैं 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करूंगा? 10 मीटर 10। 3 सेकंड में 3 सेकंड में 15. मतलब आपने किया क्या? 5 को T से मल्टीप्लाई किया ना। इज दैट क्लियर? Yes. तो जो भी पार्टिकल क्रॉस सेक्शन P से T टाइम में निकलेगा वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा?
वेलोसिटी इनटू टाइम, एम आई राइट फ्रेंड्स? और डिस्टेंस को अगर आप एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? वॉल्यूम मिल जाएगा। Yes, sir. और वॉल्यूम को अगर आप डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? बोलो। मास। मास मिल जाएगा। तो ये किसके पॉइंट की बात थी? पॉइंट पी की। सिमिलरली पॉइंट क्यू के लिए एंड पॉइंट आर के लिए सिमिलर इक्वेशन हम लिख सकते हैं। एम आई राइट फ्रेंड्स? Yes, sir. अब हमको पता है कि ये हमारा जो ट्यूब है ना वो रियल ट्यूब बिहेव करेगा। तो क्यू सेक्शन में से या पी सेक्शन में से या आर सेक्शन में से जो भी मास पास होगा वो सेम ही रहेगा। तो सबको कंपेयर कर दिया। मैंने पहले ही यूनिट टाइम ले लिया था, मतलब डेल्टा टी को मैंने पहले 1 कर दिया था। यहाँ पे डेल्टा टी रख के कंपेयर किया है, तो वही मतलब तो वही हुआ ना, सेम टू सेम ही हुआ ना। मैंने पहले से ही उसको यूनिट टाइम कर दिया था, तो डेल्टा टी पहले से 1 कर दिया था। यहाँ पे रख के कंपेयर किया है, तो वो निकल ही जाने वाला है, मतलब कैंसिल ही होने वाला है दोनों साइड से। तो फाइनली एपीवीपी इज इक्वल्स टू एआरवीआर इज इक्वल्स टू एक्यूवीक्यू, मतलब एवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, मतलब वी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए। मैंने पहले ही बताया कि ये जो ए इंटू वी है ना, उसको वॉल्यूम फ्लक्स भी बोल सकते हैं। इट इज अ वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, इट इज अ वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। उसको वॉल्यूम फ्लक्स भी बोल सकते हैं, उसको फ्लो रेट भी बोल सकते हैं। तो दिस इज रिमेन्स कांस्टेंट एंड दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। जितना आपका पाइप नैरोवर होगा उतना स्पीड बढ़ेगा, उतना स्ट्रीमलाइन, जितना पाइप का क्रॉस सेक्शन कम रहेगा उतना स्ट्रीमलाइन नैरोवर रहेगी और वेलोसिटी बढ़ेगी। जितना पाइप का ब्रॉडनेस बढ़ेगा तो स्ट्रीमलाइन का ब्रॉडनेस भी बढ़ेगा, तो आपका स्पीड कम होगा। तो अभी आपको ये याद रखना है कि स्ट्रीमलाइन जितना नजदीक होगा उतना वेलोसिटी ज्यादा होगा, स्ट्रीमलाइन जितना वाइडर होगा उतना वेलोसिटी वहां पे कम होगा। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो फ्रेंड्स आज का सेशन मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। हम वापस से सैटरडे को मिलेंगे। सैटरडे का लेक्चर मिस मत करिएगा, बिकॉज वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है इस चैप्टर का, बर्नौलीज इक्वेशन, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज यहाँ तक रखते हैं। ओके फ्रेंड्स।